Welcome to RTB Podcast, where we don't whisper the truth, we drag it into the spotlight. In India, every office has rules, every company claims zero tolerance. But behind closed cabins, behind HR emails, and behind the fear filled smiles of employees lies a reality no one wants to confront. Sexual harassment, not the headlines, the real stories, the ones buried under power, silence, and corporate politics. So, RTB Podcast presents the untold truth behind Posh. So, sir, welcome again to the show. Thank you so much for taking out time. Thank you for having me for the fourth time now. Yeah, and many more to come. Yes, of course. आज का टॉपिक आई फेल्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपसे डिस्कशन हो रहा था, बिकॉज काफ़ी जगहों पे काफ़ी लोग ये प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और बहुत लोग घबराते भी हैं. सो टॉकिंग अबाउट पॉश, द सेक्सुअल हरासमेंट लॉ, दे आर लॉट ऑफ पीपल आई एम श्योर जो कंप्लेन करते हैं, जो शायद मिसयूज़ भी करते हैं, बट ऐसे काफ़ी लड़कियां हैं और लेडीज़ हैं जो घबराते हैं कंप्लेन करने के लिए. सो व्हाई डू यू फील कि इंडिया इज स्टिल स्कैर्ड टू यूज़ एंड कंप्लेन एंड कम आउट एंड टॉक अबाउट इट? See, now if you consider the Indian society or the Indian culture, अगर यहाँ पे देखे तो हमेशा लड़की की इज्जत चार दीवारों में ही समेटी हुई अच्छी होती है, ऐसा बोला जाता है. ओके, अगर बाहर कोई भी इंसिडेंट होता है तो जनरली घर के ऊपर मतलब बड़े क्या बोलते हैं या घर के जो मेल मेंबर्स क्या बोलते हैं कि चलो हो गया. सपोज फॉर एग्जांपल ऑफिस में सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है उसके साथ, तो वो लोग क्या बोलेंगे, ऑफिस छोड़ दो. But they will not empower the woman or they will not stand up for their own woman in the house to ensure that if she is facing sexual harassment, उसके ऊपर हैरेसर के ऊपर कंप्लेंट फाइल हो जी. ओके, उसके ऊपर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और वो लड़की को जस्टिस मिले. ऑफ कोर्स. सो दिस इज समथिंग दैट एज अ फैमिली, एज अ हस्बैंड, एज अ ब्रदर, every man in the family, when he starts standing up for the woman in his family, that is where women will feel empowered to go ahead and complain. या वेरी ट्रू. क्योंकि आज अगर वो कंप्लेंट करती है और घर वाले बोलते हैं तुमने कंप्लेंट करने की क्या जरूरत थी, तुमने तो नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी, ऐसा हो रहा था, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच. The right approach is that every male member in the family should actually stand up for the woman in the family. और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो इंसिडेंट दबाने से अच्छा उसको रिपोर्ट करके इन्वेस्टिगेट करके अगर कंप्लेंट फाइल करने का ताकत अगर वो लेडी को दे या वो वुमन को दे, दैट इज़ व्हेन द रिपोर्टिंग ऑफ दिस crime or such crimes will increase. And also the amount of such incidences that are happening in the society will also decrease. Yeah, very true. Because I was reading a survey last year जी. by the National Commission of Women. So वो सर्वे के हिसाब से 46% of the women working in the Indian workforce have faced sexual harassment of some form. But the surprising fact is that only 4% of that women have reported this matter. So now you understand why the situation is so grave, why they don't report, because they are not confident enough. Or maybe are they sure कि they will not get justice because of the law system we have? See, ये तो मतलब जब तक आप मतलब कोई चीज़ ट्राई नहीं करोगे तब तक उसका आउटकम कैसे आपको पता होगा. अभी तक वो रिपोर्टिंग तक ही मतलब जा नहीं रहा है, तो उसका आउटकम के बारे में आपको पता ही नहीं है. जी. सो वी कैन नॉट टेल अबाउट द आउटकम टिल द टाइम वी डोंट गो अहेड एंड रिपोर्ट. Sir, is India actually safe for women? I told you the statistics right now. Now you tell me, is it safe for women or not? If the National Commission of Women is saying that 46% of women are facing sexual harassment at workplace, but only 4% of them are, and only 4% are reporting, this is very sad. You only tell me, is it safe or not? Yeah. The statistics answer the question. Yeah. What is the biggest myth about sexual harassment that you want to break right now? See, there are a lot of myths, but one of the biggest myths is that sexual harassment is not only about sex.
It is about repeated harassment in terms of, you know, making comments, passing, you know, vulgar remarks, and that is what constitutes sexual harassment. Second myth ये भी होती है कि सपोज अगर मैंने किसी लड़की को, अगर मुझे ऑफिस में कोई लड़की अच्छी लगी और if I ask her out for a dinner, that will be considered to be sexual harassment. No. The Sexual Harassment Act very clearly defines what is sexual harassment. So first of all, showing pornographic videos, using vulgar language, making sexually colored remarks in terms of the color, skin tone, appearance. Okay. And the fifth and very important part, any behavior or gesture that makes a woman feel uncomfortable. Can it be a message on WhatsApp? Absolutely. If it is, so for example, I'll give you an example. Suppose tomorrow if I ask a woman out who's working with me in the same workplace, if I ask her out for a movie or for a dinner date, and if she refuses, but persistently I'm keeping on doing that, sending her messages, forcing her, pressurizing her, that will constitute as harassment. Oh. Because once she has said no, that no really means no. And उसके बावजूद आप अगर कर रहे हो, then that is sexual harassment. Sir, why do women still hesitate to file posh complaints despite the law being strong on paper? See, that is what I told you कि पहले तो job insecurity, घर वालों का pressure, societal pressure, उसके बाद आगे जॉब मिलेगा कि नहीं, यू नो, उसमें भी उनको गारंटी नहीं होती बिकॉज दे हैव मेड अ कंप्लेंट एंड दिस कंप्लेंट इज रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट ऑल्सो एट द एंड ऑफ द ईयर. देयर इज अ प्रोविजन इन लॉ. सो ये सारी चीज़ों की वजह से डर ज़्यादा होता है कि अगर मैं कंप्लेंट करूँगी तो मेरे करियर का क्या होगा, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे. अभी ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंसेस लाइक वुमेन हैव कम टू मी एंड दे हैव टोल्ड मी कि कहीं ये बात मेरे घर तक तो नहीं जाएगी. आई सेड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, घर तक जाएगी तो. दे से माई हस्बैंड विल टेल मी टू स्टॉप वर्किंग. मुझे घर बैठना पड़ेगा. इंस्टेड आई डोंट रिपोर्ट इट. सो इफ दिस इज हैपनिंग, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर नॉट मेकिंग द कंप्लेंट्स. So there is pressure on all the angles due to which the hesitation comes in. Now, how often do you see companies manipulating internal committees to protect their senior employees? See, protecting se zyada, if any person who's a super top performer in the company, who's a rainmaker sort of a person, who's getting loads of business to the company. So for the company, he's more as an asset. तो इसीलिए ये सब प्रोसेसेस में इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ अबाउट रिस्क मिटिगेशन कि ये मैटर को दबाया कैसे जाए, ये मैटर को कैसे हम लोग मतलब सेटल किया जाए. इस तरीके का अप्रोच होता है जिसके वजह से वो अनड्यू इन्फ्लुएंस लगने लगता है. बट आई फील ये तो बहुत ज़्यादती हो जाएगी. एब्सोल्युटली. जिस इंसान पे बीत रहा है तो एब्सोल्युटली है. एब्सोल्युटली है. सर, हाउ ऑफन लोग पॉश को मिसयूज़ करते हैं और करते हैं क्या? डेफिनेटली करते हैं, बट एवरीबडी शुड नो दैट मिसयूज तो हो सकता है, बट देर आर वेरी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस इन द पॉश एक्ट कि अगर कंप्लेंट झूठी पाई जाती है, अगर सपोज इफ अ वुमन इज मेकिंग अ फॉल्स कंप्लेंट, ओके, देन अगर वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये फॉल्स कंप्लेंट हुई है, तो द IC, the internal committee, can recommend an action against the woman, which can be termination, suspension, any sort of action. Okay. Yes. So it can be brutal also. Absolutely. It's only the thing is that it takes time. It takes 90 days for, you know, the truth to come out during the investigation. Can you share a case without the details जो आपने किया हो और So वैसे तो काफ़ी सारे हैं, बट वेरी इंटरेस्टिंग केसेस, यू नो, देयर वाज अ कपल इन द ऑफिस हु वाज गोइंग अराउंड टिल द लेवल दैट दे वर प्लानिंग टू गेट मैरिड. Okay. अब अनफॉर्चुनेटली थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट वेल एट द एंड एंड दे स्प्लिट. बट टू टेक वेंजेंस, दैट गर्ल फाइल्ड अ रेप केस ऑन हिम, एंड आफ्टर ही केम आउट ऑन बेल, शी ऑल्सो फाइल्ड अ सेक्शुअल हैरेसमेंट केस ऑन हिम. अच्छा, तो पहले शी इज फाइल्ड अ रेप केस एंड देन उसके बाद और तकलीफ देने के लिए पॉश केस. Now the committee also haphazardly gave a report saying that sexual harassment हुआ है and he was terminated from the company. Later we went in an appeal
and we got the decision overturned because the investigation was done in a very haphazard manner. In terms के for example by law complaint 3 महीने के अंदर करनी पड़ती है, उसमें कोई time frame नहीं था, कोई evidence नहीं लिए थे, कोई cross examination नहीं हुआ था. Because here IC committee plays a very important role because they have the powers of a civil court. And this is a very big responsibility that has been thrown on the IC committee. कि if they have the powers of a civil court, they should enforce the powers like that. They should conduct the investigation having in mind the principles of natural justice, जो काफ़ी बार overlook हो जाता है. And ये overlook इसके वजह से होता है because the POSH committee, the IC committee does not have a proper level of certification or expertise to handle this particular case. Okay. It is more about just ticking boxes. You are just doing the POSH compliance. But it is not about going deep diving and seeing really whether our workplace is safe for women or not. That is where it goes wrong. Any heartbreaking moment जो you've come across कभी ऐसे कोई केस में? So there is a very big company. Okay, the person was also working at a very high position, and there were 2 interns who joined his team. And what happened is that somehow they were not able to match the work standards that were set up by this particular guy. Okay. And just to ensure that their team changes, these women went and filed a sexual harassment complaint on him. Now उनका टीम तो बदला, but again वो बड़े कंपनी ने उसको टर्मिनेट कर दिया. अच्छा, तो मतलब उनको कोई लेना देना था ही नहीं. नहीं, there was no ingredients of the definition of sexual harassment as per the act. तभी भी haphazardly the HR team sent a complaint which was a work based harassment, you can say. Even if there was a harassment, that was a work based harassment. There was no sexual element in that. But instead of having the knowledge and doing the due diligence, the HR haphazardly pushed the complaint to the internal complaints committee. The internal complaints committee conducted a haphazard investigation and terminated him. Yes. So even I'll tell you a live incident. So there is a very big company who's now IPO listed also. So they were our clients, and one of the directors, उसके against sexual harassment का complaint था. Now when we took the director in confidence, we spoke to him. उसने भी हमको यही बताया कि भाई ऐसा कोई harassment हुआ नहीं था. Whatever happened in a very mutual manner. But the company was of the opinion कि the person who's at a director level should not be having affairs with his junior. तो कंपनी ने सीधा बोल दिया था कि आप कुछ भी करो, इसको निकाल दो, आप रिपोर्ट ऐसे बनाओ. Of course we said no, and that was unethical. We did not do it. But we do get such scenarios. Have you seen anybody breaking emotionally and financially in this process? See, more emotionally than financially. क्योंकि financially इसमें तो कोई मतलब there is no legal cost or there is no like extensive cost that you have to pay for letting this case run. I'm sorry मैं आपको रोक रहा हूँ सर, but इससे पहले जब I'm sure पहले तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ता होगा, तो वहाँ नहीं फाइनेंशियली मिसयूज किया जाता होगा लोगों को, क्या लगता है आपको? से अभी एज लॉन्ग एज इट इज़ इन द कॉर्पोरेट फोरम, लाइक इन टर्म्स ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, तब कोई खर्चा नहीं है. अब पुलिस क्या खर्चा निकलवाते हैं, दैट वी कैन नॉट से. ऐसा है वो. मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे कोई प्रोसेस के बाद जहाँ पे जिस पे हम ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ही इज़ डन सम सेक्सुअल हैरेसमेंट टू अ गर्ल, तो अगर उसकी गलती नहीं है तो आई एम श्योर वो मेंटली तो डिस्चार्ज होता ही होगा. एब्सोल्युटली. और फाइनेंशियली भी शायद होता ही होगा. सी मेन इज सपोज अगर एक फॉल्स केस डाली गई है तो वो इंसान का मतलब वो द मेल हैरेसर जो है, एलिज्ड हैरेसर जो है, उसका सिर्फ जॉब नहीं जाता है, उसकी इज्जत जाती है नॉट ओनली ऑफिस में बट घर में, रिश्तेदारों के सामने, पूरे समाज में. एंड इट्स एन अंडरलाइंग फैक्टर कि भले यू कम क्लीन but still the society will mark you as a harasser, or label you as a harasser. So next time when you go and find a job and you have to face a HR, तो उनको तो पता ही होगा. Right. And all these reports are filed, everything is background verification में तो सब पता चल जाता है अभी. So why do so many HR departments fail victims instead of protecting them? Because HR departments are primarily built to protect the company,
Yeah. not the employees. Yeah. This But- is the biggest problem. Yeah. वो बोलते हैं human resource and this is for the employees, but in reality and the fact of the matter is that HRs are only protecting the interest of the company. उनको कोई लेना देना नहीं है किसी के साथ harassment हो रहा है नहीं हो रहा है. Their first job is to protect the reputation of the company. Yeah. So that is where जहाँ से उनको मनी भाई आ रहे हैं बेसिकली. yes. So they will try to protect the mitigate the risk Yeah. instead of investigating the matter. Yeah. Second reason that they are failing is how many HRs do you know who have formal certification on POSH? आई डाउट बहुत कम होंगे. तो जिनको नॉलेज ही नहीं है उनको आप अगर आईसी कमेटी में बिठा दोगे तो वो क्या करेंगे? It will be a total haphazard investigation. या 100%. So there is one HR who stays in my apartment, and she was discussing one case with me, and she was telling me कि हमने उसको पूछा कि तूने ही ऐसा किया है ना करके. मैं बोला why are you implying कि उसने किया है? Your job is not to imply. Your job is to investigate. Yeah. And this is where they are going wrong. So lot of male counterparts who come to me who against whom sexual harassment complaints are filed, ये HR या IC कमेटी उनको परेशान कर देती है. They start implying him, अरे तुमने तो ये किया है, क्यों किया, तुमने ही किया होगा, कैसे किया, क्यों किया. तो उल्टा हो गया ये तो. So instead of implying, Yeah. your job is to investigate Yeah. and conduct a thorough Yeah. report And help both of them. and find out the truth Yeah. mainly. Yeah. और तो वो तो हो ही नहीं रहा. आप अगर डायरेक्टली अगर बोलते हो अरे तुमने ऐसे किया है करके, क्यों किया, अगर स्टार्ट इससे हो रहा है तो व्हाट इज द फेयरनेस ऑफ द कमिटी? Yeah. Very true. Question of the hour, because we live in times where today maximum things are operated and controlled by Gen Zs. तो अगर आप एक Gen Z के mindset में जाओ थोड़ा टाइम के लिए, तो is flirting, praising looks और sending emojis considered harassment under POSH? क्योंकि ये तो बहुत कॉमन है उनके बीच में. सी जैसे मैंने आपको एक्ट का डेफिनेशन बताया, सेक्सुअल हैरेसमेंट का डेफिनेशन बताया, एनी गेस्चर दैट मेक्स अ वुमन फील अनकंफर्टेबल दैट विल कम इनटू द फोरे ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट. अगर कोई भी चीज़ आप इमोजीज भेजो, आप उसको कुछ भी भेजो, जब तक कि वो अनकंफर्टेबल फील नहीं करती एंड शी इज़ नॉट एक्सप्रेसिंग हर डिस्कम्फर्ट, तब तक वो हैरेसमेंट नहीं है. द टाइम व्हेन शी expresses her discomfort is the time you have committed sexual harassment. That is about it. हमने जब से पॉश का ये डिस्कशन स्टार्ट किया तो हम सिर्फ एड्रेस कर रहे हैं या शी या हर. व्हाट अबाउट मैन? जितना लड़कियां हैरेस होती होंगी, आई एम श्योर लड़के भी होते ही होंगे, या LGBTQ में जो हैं या लड़के हैं, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए ये नया BNS जो बना है वो है, दे कैन ऑलवेज कंप्लेंट अंडर द रिलेवेंट क्रिमिनल लॉज, उसमें भी हैरेसमेंट का ऑप्शन है. सो दिस एक्ट इज स्पेसिफिकली फॉर वुमेन. पॉश. ओके. ओके. बट अंडर द अदर सेक्शंस ऑफ लॉ डेफिनेटली दे कैन गो अहेड एंड कंप्लेंट. ऐसा So- कोई नहीं दे वो कंप्लेंट नहीं कर सो सकते. दिस डजंट मीन ना कि पॉश इग्नोर्स मेन. नो, सी पॉश ये एक्ट बना क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द हिस्ट्री. कहीं पे एक छोटे से गांव में जब एक औरत किसी समाज के लिए काम कर रही थी टू स्टॉप सर्टन प्रैक्टिसेस दैट और रिचुअल्स दैट वर गोइंग ऑन ड्यूरिंग दैट टाइम, द मेन केम एंड रेप्ड हर टू स्टॉप हर फ्रॉम डूइंग ऑल दिस थिंग्स, टू सेंड अ मैसेज टू द अदर वुमन के शी कैन नॉट डू ऑल दिस थिंग्स. दैट इज वेयर ये सारे रूल्स फ्रेम होना चालू हुआ एंड 2013 में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट हुआ. अब एक्ट के 3 पार्ट्स है. One is prevention, prohibition and redressal. जी. Prevention of offense, protecting anybody from getting harassed, or if somebody is getting harassed उसको prohibit करना. And third thing is अगर कोई sexually harass हो रहा है तो उसका redressal देना. So this is the reason this act was actually created. There's something सर जो मेरे दिल में है, मैं आपसे ओपन हार्टेडली पूछना चाहता हूँ. आप एक केस लड़ रहे हैं और उस लड़की के साथ बहुत हैरेसमेंट हुआ है, यू बिलीव इन हर एंड you've got her justice finally, and she is very happy, the family is happy, you are happy, and the case is done. Now you go back home and suddenly you start realizing, और आप वो हर पॉइंट अब वापस सोचते हैं और उसको रियलाइज करते हैं, री एनालाइज करते हैं, और आपको लगता है यार ये मेरे से गलती हो गई,
पूरा प्लान था, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? सी टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी ये चीज़ें सोचता नहीं हूँ, बिकॉज फॉर मी इट्स माई प्रोफेशन. इन माई प्रोफेशन इफ़ आई टेक अप अ क्लाइंट्स केस, फर्स्ट ऑफ ऑल माई ओनली जॉब इज़ टोटली बिलीविंग अपॉन हिम और हर. सच झूठ क्या है मुझे नहीं पता, बट मुझे एक ही मेरा काम है एज अ लॉयर, उसके लिए फाइट करना, एंड दैट इज़ माई ड्यूटी, और वो मैं करता हूँ. या कि वो फिर वो सही है गलत है, आई एम नॉट अ मॉरल पुलिस टू जज कि उसने सही किया है गलत. वो तो जो देख रहा है वो तो देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है उसने सही किया है गलत है. बट मेरा काम है ऑनेस्टली विथ पूरा 100% निष्ठा के साथ उस इंसान के लिए फाइट करना, उसका जो मोटिव है वो पूरा करके देना इज़ माई काम. या तो वो सही है गलत है, उसने किया है नहीं किया है, ऑनेस्टली ऑन अ प्रोफेशनल फ्रंट मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है. एंड वंस द केस इज़ ओवर, द फाइल इज़ डिसमिस्ड फ्रॉम माई ऑफिस. बट कभी तो एज अ ह्यूमन आप जब एज बैठते ए ह्यूमन होंगे क्या, एकांत बहुत बार में, मुझे पता चलता है एट द फर्स्ट मीटिंग विद द क्लाइंट इटसेल्फ कि ही इज़ इन द रॉन्ग. या But then my professional ethics tell me, or my advocate rules tell me, that if I have taken up a case, I have to give my 100% to that particular person. या 100%. Either I don't take up that case, या सो सिंपल Okay. है, आई बिलीव यू इन or दिस. I don't judge that person. Because my job is not that. My profession does not tell me that. My profession is to fight for my client, and that's what I do. या थोड़ा लीगल डीप डाइव करते हैं. हाँ हाँ. What are the biggest mistakes victims make while filing a POSH complaint? लॉट ऑफ मिस्टेक्स. फर्स्ट थिंग तो बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये 3 months का टाइमलाइन है. सो 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट इंसिडेंट आपको रिटर्न एप्लीकेशन देना है. Okay. बहुत सारी लड़कियां मिस्टेक ये करती है कि वो रिटर्न एप्लीकेशन या कंप्लेंट एप्लीकेशन वो HR को फॉरवर्ड करती है इंस्टेड ऑफ फाइलिंग इट डायरेक्टली विद द IC. Oh. सेकेंड, एविडेंस नहीं रहता है उनके पास. कभी कभार वो मैसेज, अभी सपोज कोई मेल काउंटर पार्ट है ऑफिस में और कंटिन्यूसली हैरेसिंग मैसेजेस कर रहा है, तो वो सपोज अपने घर पे जा रही है, तो उसका हस्बैंड है या कोई है, तो पहले वो डिलीट कर देती है कि उसको पता ना चले. बट वो मैसेज डिलीट नहीं कर रही है, वो अपना एविडेंस डिलीट कर रही है, वो अपना केस वीक कर रही है. सो Very true. कीप योर एविडेंसेस. सेकेंड थिंग, विटनेसेस बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए आपके पास कि ये चीज़ें, क्योंकि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वर्बल एलिगेशंस कोई एलिगेशन प्रूव नहीं होता है. Yeah. देयर शुड बी सम एविडेंस दैट शुड बी गिवन टू बैक दैट पर्टिकुलर कंटेंशन. Yeah. सेकेंड, थर्ड, ये जब कंप्लेंट लिखते हैं तो बहुत ही इस आदमी ने मेरे साथ इतनी बार सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, उतना ही. बट दे डोंट गो इन टू द डिटेल्स, दे डोंट राइट द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट, कितने बजे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कौन कौन वहाँ मौजूद था, क्या क्या मैसेजेस या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपके पास है, ये सारे चीज़ें अपने day 1 में ही कंप्लेंट में लगानी चाहिए. मतलब बी ओपन एंड डोंट हाइड एनीथिंग, मतलब A to Z. हाइड ने मोस्टली दे डोंट नो, उसके वजह से ये होता है. ऐसा नहीं दैट दे वांट टू हाइड समथिंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर नॉट अवेयर ऑफ द लॉज. तो इसके वजह से ये सारी चीज़ें दे शुड नॉट डू. सो ऑलवेज गिव अ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, मेक इट. जब सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, डोंट वेट फॉर दैट 90 days कि 90 days का पीरियड है, मैं सोचते रहूँगी और कंप्लेंट करूँगी. नो, हुआ है, नेक्स्ट डे कंप्लेंट करो. क्योंकि नाउ द अपोजिट पार्टी कैन क्वेश्चन कि इतने दिन तुमने क्यों, मतलब अगर तुम्हारा इंसिडेंट आज हुआ है तो तुमने 20 दिन क्यों लगाए कंप्लेंट करने के लिए. वॉज देयर सम अदर मैलिशियस मोटिव? या 100% कि क्या आप कुछ प्लान कर रहे हो. यस. तो इसके वजह से तुरंत कंप्लेंट होनी चाहिए, डिटेल्ड में कंप्लेंट होनी चाहिए, सारे एविडेंसेस आपके पास होने चाहिए, सारे विटनेसेस अगर कोई है तो आपके पास होने चाहिए. सो इट शुड बी अ वाटर टाइट कंप्लेंट दैट शुड बी मेड. तो यहाँ पे ये गलती होती है कि ये सारी चीज़ें होती नहीं है. Sir, how much power does the IC, the internal committee, actually have, and where does it fail? See, well, as I said, IC has the powers of a civil court. आप सोचिए, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है IC कमेटी को. अब IC कमेटी का कंपोजिशन जान लेते हैं क्या होता है. सो IC कमेटी इज मेड अप ऑफ 3 parts. एक जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, शी शुड बी फ्रॉम अ मैनेजमेंट पोजीशन, जैसे कोई डायरेक्टर हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, मैनेजर हो गया, सीनियर मैनेजर हो गया. 1 प्रिसाइडिंग ऑफिसर फ्रॉम द साइड ऑफ द मैनेजमेंट, 1 फ्रॉम द साइड ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि फॉर एग्जांपल कोई एसोसिएट स्टाफ
या कोई टीम लीडर, जी। या आप बोलो कोई जनरल एक डेवलपर है एक आईटी कंपनी में. सो इवन एक पर्सन फ्रॉम द साइड ऑफ द people or from the side of the employees, and there is one provision for a non-governmental organization person. She should be a woman and she should be working in the area of women empowerment. ओके। So ये तीन टाइप के लोग होते हैं. So one from the side of the management, Yeah. one from the side of the employee, and one a neutral member. Yeah. But unfortunately, even after giving them powers of a civil court, these people are not trained to conduct an investigation in that So manner. who's at fault? Well, it's a top to down approach. ऊपर से ही शुरुआत गलत है. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आईसी कमेटी का एक ट्रेनिंग करवा देंगे. एक ट्रेनिंग में आपको क्या समझ में आने वाला है? मैं आपका आज एक आधे घंटे का सेशन लूंगा, आपको क्या समझ में आने वाला है? 15 मिनट के बाद तो आप सो जाओगे. Yeah. सो इट्स जस्ट नॉट कि मैंने ट्रेनिंग लिया और उसको अभी हम लोगों ने बिठा दिया, नाउ शी इज पॉश ट्रेन. नो. Has she seen various scenarios? Has she studied? Has she investigated? Has she researched? Yeah, that is the most important part. तो ही तो वो आईसी कमेटी प्रॉपरली फंक्शन करेगा. उनको पता ही नहीं है सिविल कोर्ट के पावर्स क्या है. आप कोई भी आईसी कमेटी के मेंबर्स को पूछो कि आपके पास सिविल कोर्ट्स का पावर है, क्या क्या पावर्स है आपके पास. आई विल टेल यू 10 में से 9 लोगों को इसका आंसर पता नहीं होगा. बुक का जो एक्ट में लिखा है वो लोग बता देंगे, बट सिर्फ बताने से नहीं होता है, समझना भी उतना ही ज़रूरी है ना. Yeah, very एंड true. समझना एक्सपोजर से आता है, Yeah, रिसर्च से आता है, yeah, of course. इन्वेस्टिगेशन से आता है. एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन लॉजिक. ऐसा कोई गलत मतलब अलग नहीं करना है, बट अच्छे जगह से मतलब ट्रेनिंग लो, सर्टिफिकेशंस लो, इंस्टीट्यूट्स जो है जो स्पेशलाइज करते हैं इस चीज़ों में. तो ये सब चीज़ें, और साल में एक बार ट्रेनिंग लेने से नहीं होता है, क्योंकि साल में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस दैट कम. Yeah, yeah. सो जो न्यू कमेटी मेंबर्स आ रहे हैं उनको पुराने केसेस देना, उसको स्टडी करने के लिए बोलना, उसमें उनका एक यूनिक अप्रोच क्या है वो देखना. सो द सिलेक्शन प्रोसेस शुड बी वेरी टाइट, which is not happening. Yeah. And that is the reason the IC committees are failing, because they are not aware. Are influential or celebrity offenders treated differently under POSH in India? क्या इनको You अलग? tell me, you are from the film industry, you tell me, are they treated differently? आई डोंट थिंक सो. मतलब मैं सोचता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए. जैसे मान लीजिए अगर कोई पॉलिटिशियन है बहुत बड़ा और उनका ऑफिस है, और अगर वहाँ का कोई केस आता है कि XYZ पॉलिटिशियन हैज़ सेक्सुअली असॉल्टेड मी और ऐसा हैरेस किया है, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी कि सेम ही चलेगा सब कुछ? सी, चेंज होने के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी होता है. जब चारों जैसे व्हेन यू सॉ कि वन पर्सन केम आउट विथ मी टू एंड देयर वर 100 केसेस. या सो यहाँ पे कहीं ना कहीं जब शुरुआत होगी, कोई ना कोई ढंग से आवाज़ उठाएगा, तब सामने वाला करने से भी डरेगा एंड उसको फिर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगी. आई थिंक दोनों ये चीज़ें हैं. पॉश फॉर्म होने के बाद से ही ये मी टू भी बहुत स्ट्रांग हो गया. पीपल स्टार्टेड. मुझे आज तक पता नहीं चलता ये चीज़ों की, दैट वाई डू अ पर्सन नीड्स अ एक्ट और अ रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. अगर इट्स अ लॉजिकल थिंग कि तुम्हारे साथ अगर गलत हो रहा है तो यू शुड गो एंड रिपोर्ट. वाई आर वी वेटिंग फॉर सम एक्ट, रूल्स, गवर्नेंस, गवर्नमेंट इंटरवेंशन? वाई? कहीं ना कहीं सर सिस्टम में लूप होल्स होंगे मे बी. और किसने बनाया ये सिस्टम? लोगों ने हमने ही बनाया ना? या हमने बनाया ऑब्वियसली. सो वी ओनली हैव टू करेक्ट द लूप होल्स. आई टोटली एग्री विद यू. मान लीजिए जितना स्ट्रॉन्ग एक रेप विक्टिम को वो किया जाता है, उसके लिए लॉ है एक रेप विक्टिम के लिए, अगर उतना ही स्ट्रॉन्ग पॉश का अगर लॉ हो गया तो? सी, लॉ है ना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन का है. इट्स नॉट अबाउट हैविंग स्ट्रिक्ट लॉ भी नहीं रहेगा, एक जनरल लॉ भी रहेगा, बट अगर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा रहा है तो मतलब क्या है? And as we were discussing in the beginning of this podcast, if you see the survey, when you see that 46% of the women are facing sexual harassment at workplace, Yeah. and only 4% of them are reporting. What does that statistic say? Law है, but अभी भी implementation strong नहीं है. People still don't believe
in the mechanism of IC or in the investigation of the of a posh case. And ये क्यों है? हमारे वजह से है. When we are not doing our job, इसलिए तो वो distrust आ रहा है Very लोगों true. में. Yeah, very true. So they should take IC is the peak or is the apex committee in the company who can deal with that. But उन्हीं के पास expertise नहीं है. Yeah, They are only biased. yeah. What is one change every company can make tomorrow to create a safer workspace? First, train the internal complaints committee on POSH laws specifically. Don't let HRs handle the matter because they are not trained or equipped for that. And if you are giving the matters to your HR to handle, at least please train and equip them to make them competent to understand what these cases are. Yeah. क्योंकि काफ़ी सारे केसेस में कभी हैरेसमेंट होता भी नहीं है, बट सिर्फ उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट ये वर्ड यूज़ किया है इसलिए वो आईसी कमेटी के पास जाता है. दे डोंट एडुकेट. एज पर लॉ आईसी कमेटी के मेंबर्स का नाम हर जगह पे होना चाहिए, हर फ्लोर पे होना चाहिए. इट शुड बी एन एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन. Yeah, and easy. यस, Yeah. बट वो इट इज़ डीप डाउन समवेयर कहीं पे उनके इंटरनल इसमें वो जाके ढूंढ के हमको पता चलता है. कितने लोगों को तो पता भी नहीं है दैट देयर इज अ इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी इन द ऑफिस. Yeah, yeah. What about that? Yeah. Lot of startups वो बोलते पॉश कमेटी की क्या जरूरत है, हमारे पास सिर्फ 10 लोग हैं, अभी क्या करेंगे, क्यों एक्स्ट्रा खर्चा करें हम लोग. बट ये खर्चे की बात नहीं है. खर्ची की बात नहीं है, बट ये जस्टिस की बात है कि दिस इज वेयर द अप्रोच शुड चेंज. दिस इज वेयर द एटीट्यूड शुड चेंज. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कंप्लायंस. मुझे एक आप बात बताइए कि विल यू एज अ मतलब पीपल हु डोंट वांट टू स्पेंड ऑन आईसी कमिटीज एंड हु डोंट वांट टू फॉलो पॉश कंप्लायंस, would they like to send their sisters, their daughters, their wives in a unsafe environment? obviously not. So why are they not following the same thing in their workplace? Yeah, yeah, very true. So this is a point to contemplate Yeah. for everybody. Yeah. If you had the power to rewrite the POSH Act, what is the first thing you will change? See, there is nothing to change in this. As I said, that I will make the implementation stronger. I will make the people who are in that committee more competent. I will enforce stricter training measures, training certification measures. ये सारी चीज़ें होंगी तो एक सेफ वर्क प्लेस होगा. Yeah, very true. So कोई एक मैसेज, क्योंकि काफ़ी लोग सुन रहे हैं, कोई एक मैसेज जो आप देना चाहते हो कि मैसेज से ज़्यादा इट इज़ अ रिक्वेस्ट एक्चुअली टू ऑल द वुमेन हु आर फेसिंग हैरेसमेंट कि प्लीज़ 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 रिपोर्ट. आपका डर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हैरेसर्स हिम्मत. आप जितना डरोगे उसमें हैरेसर में उतनी और ताकत आते रहेगी. सो बिल्कुल बिना डरे यू हैव टू मेक अ कंप्लेंट. You don't need to be afraid of what the society will think, what your father will think, what your brother will think, what your husband will think, or any damn person in this world will think. If something wrong is happening with you, have the courage to go ahead and complain. I totally agree with you. Yes. Thank you so much for coming again on the show today, sir. Thank you for having me again. मैं हमेशा हमारे पॉडकास्ट पे तो बोलता ही हूँ कि आई लव पीपल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट हु actually come out and talk for the society and who want to give back to their community, because बहुत ज़रूरी है. आज हम सिर्फ लेने में लगे हुए हैं, देने में नहीं. बराबर है. मतलब हमें हर चीज़ चाहिए ज़िंदगी में, लेकिन हमें हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं करना. And that is where awareness and sensitization Yeah. plays a very important role. Yeah. You know why this act is more feared? Because it is less understood. वेरी ट्रू. लोगों को पता ही नहीं है, Yeah. इसलिए डर है. वो आपने स्टार्ट में बोला ना कि जहाँ सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात आती है तो लोग उस वर्ड और टर्म से ही घबरा जाते हैं. यस. एंड जैसे आपने पूछा कि क्यों कंप्लेंट्स नहीं होते, क्यों औरतें कंप्लेंट नहीं करती है, वी आर मेल मर्द रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए, क्योंकि उसने उस अपने एंड आई डोंट थिंक वुमन नीड्स एम्पावरमेंट फ्रॉम एनी मैन. शी इज एम्पावर्ड हर सेल्फ. मैं एक बात बोलूँ तो शायद सब मर्द को दुख हो जाएगा इस बात से. हम जजमेंटल हो जाते हैं, बीइंग ऑनेस्ट. ट्रू. वो थोड़ा ऐसा लगता है वो मेल ईगो पे आ जाती है बात. मेल ईगो से अच्छा क्या होता है कि क्या हम लोग सोचते हैं कि हमारी इज्जत रास्ते पे आ जाएगी, विच इज़ नॉट द केस. किसी की इज्जत बचाना, अपने घर के फैमिली की औरतों की इज्जत बचाने से इज्जत रास्ते पे नहीं आती है. उल्टा यू आर एम्पावरिंग नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर वुमन बट जनरेशन ऑफ वुमन हु विल कम इन टू योर फैमिली. ओके, यू आर एम्पावरिंग देम.
क्योंकि ये मैसेज स्ट्रांग होना चाहिए. Very true. If you see most of the strong women come from strong families or male counterparts who support their woman in their decision. Yeah, yeah. Most of the successful women. या हम बोलते हैं ना कि देश हमारी माँ है, ये हमारा मदरलैंड है, और अगर हम माँ इतना बोलते हैं और औरतों के हित में अगर नहीं खड़े हुए तो फिर किस काम के सब लोग. अगर आपके माँ को, आपके बहन को, आपके डॉटर को, आपके वाइफ को अगर कोई तकलीफ दे रहा है तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग हर टू क्विट वर्किंग और लुक द अदर वे, men should teach or they should have the courage to tell the woman that okay, I am with you, 100%. I am there for you. Yeah. Okay. एंड एज ए सेड वुमन इज सेल्फ एम्पावर्ड, उसको कोई एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है. बट आखिर में एक वुमन भी तो इंसान है ना. एक छोटा सा हल्का सा सपोर्ट बहुत मतलब आगे तक जाता है. अगर आप कोई नया वेंचर कर रहे हैं, आपको अगर कोई सपोर्ट मिलता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है. ऑफ कोर्स. सेम इज द माइंडसेट ऑफ अ वुमन. लेट्स स्टार्ट अप्रिशिएटिंग देम एंड नॉट एंड लेट्स स्टार्ट एम्पावरिंग देम to have the guts to stand up for themselves. Very true, sir. You don't need to hold her hand and take her to make a police complaint. She will do that. But at least उसको इतना support करो कि भाई तू जा, हम तेरे साथ है करके. ये मत उसको बोलो कि भाई तुम कंप्लेंट मत करो, अपनी इज्जत निकल जाएगी फैमिली की. ये मत करना. आई होप आज सब इस बात को सुने और अगर वो 4% से आंकड़ा 8% भी हो जाता है तो आई थिंक काफ़ी फ़ायदा होगा. I remember I was doing a webinar once, and when I spoke all these things, all I could see is negative comments from the male section. कि नहीं क्या? वो तो होता ही है सर. And I'm fine with that. मेरे को भी 2-3 गाली देंगे अभी कमेंट्स में, but ठीक है. It doesn't matter. Yeah. I know morally I'm standing up for the right thing. I'm telling the right thing. I'm guiding the women on the right thing. So I'm not bothered what the society is going to label me as. वो ये प्रॉब्लम कब होती है ना सर, जब किसी को हम सच बोल दें ना तो दिक्कत हो जाती है. Yes. झूठ बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है. Yes, वही है. So thank you so much. It was a pleasure doing this podcast with you, and hope to see you again. Yes, of course. And if you guys like our content, please like, share, subscribe, and we will see you in the next podcast. Thank you so much for watching. Thank you, sir.